Good evening, dear students. In the last lecture, I told you that we will be studying now the topic of menstruation. But before we go ahead, we will take the attendance. And I am sorry that Shakshi, Lakhan, and Vivek, they are not now attending the classes. They are not serious either, or they have left the school. But I will tell everyone that after 10th of July, no one will be allowed to attend the classes, as that is the last date for admission to this class. Nilesh, Nitesh, Saurav, and they are also not attending the lecture seriously, and Shrestha Rana is also not. Shrestha Rana now have changed the phone. I don't know why. Earlier, for the last 1 and 2 months, she was having some other phone. Now she is having some other phone. Let us see now if she attends properly. Similarly, Saurabh is sending messages on behalf of, in the name of Priyanshu. I don't know Priyanshu if it is, or if the name of the father of Priyanshu may be the name of the father of Saurabh. But he should send messages through the registered mobile number which he has registered with us in the group. So now today's attendance: Ayushi Singta, Akanksha Sharma, Ankita Changra, Kalpana Sharma, Mokshika, Pravjot, Sapna, Shrestha Rana, she is also not attending regularly, Sabika Ali, then Swati Bhardwaj, Amarpreet, Himanshu Saini, Manish Kumar, Ritesh Dubey is also not a regular, as I told. He is not attending the classes. I may have to cut his name also. Then Sushant, Nilesh is also not serious, as I told you earlier. So this is the position of attendance. So if you are not attending regularly, then you will face the consequences later on, because it is a board class and life making class. You may make your life, you may spoil your life. So now I give you 1 minute for collecting your notebooks and ball pen, etc. 1 minute starts. Now your 1 minute is over, and before we start with the topic of menstruation, first of all, today we will study about human reproduction. Human reproduction. The main object of reproduction is to give birth to a child. The process of reproduction in living beings is universal. It's a universal phenomenon. To give birth to a child, बच्चों को पैदा करना, उत्पन्न करना, ये मेन काम है रिप्रोडक्शन का. और ह्यूमन है तो ह्यूमन बींग्स का, बिकॉज चाइल्ड विल बी ह्यूमन. What happens through reproduction organs, जो हमारे रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स होते हैं मेल एंड फीमेल के, उनसे क्या होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन होती है
by a process called copulation, or we can say intercourse. By copulation, the child is first in small portion, it grows. That is called, we can say, embryo, and then it goes on for 9 months. It remains in the mother's womb. So there are not, as I told you, that there are two persons, male and female. Due to their copulation, that human reproduction takes place. So the male reproduction system has external organs as well as internal organs. So first of all, we will go to the external organs. External means which can be seen by naked eye. Internal means those organs which cannot be seen by the naked eye. They are inside the body. They can be seen with X-ray or with MRI or with some scan, etc. CT scan, like that. So the first important part of the, we can say, outer portion, or we can say the external organ, is penis. It is also known as ling. In Hindi it is called ling, penis. What is penis? A tubular structure होता है, tubular, ट्यूब की तरह का, और किससे बना होता है? मेड अप ऑफ स्पॉन्जी टिश्यूज. स्पॉन्जी टिश्यूज का बना होता है ये, जिसमें कि ब्लड भरा होता है ड्यूरिंग इरेक्शन. जब वो सीधा खड़ा हो जाता है तो ये टाइट हो जाता है, वी कैन से, तो उसमें ब्लड भर जाता है, जिससे कि कॉपुलेशन पॉसिबल होता है. इट मेक्स द कॉपुलेशन पॉसिबल, इंटरकोर्स पॉसिबल. इफ द पेनिस डज नॉट बिकम स्टिफ, अगर स्टिफ नहीं बनेगा तो क्या होगा? जब स्टेट नहीं होगा तब क्या होगा? देन दैट स्टेट इज नोन एज इम्पोटेंसी. इम्पोटेंसी, IMPOTENCY, इम्पोटेंसी. इम्पोटेंसी का मतलब है कि नामर्द जिसे कहते हैं. जब उसका स्टेट नहीं होगा, स्टिफ नहीं होगा पेनिस, देन copulation is not possible, and that state is known as impotency. Then the second part is glands, मुंड. ये लिंग के एंड में जाकर के, लिंग के अंत में, आखिर में एक हेलमेट शेप्ड होता है. जैसे हेलमेट होता है आपका स्कूटर में लगाते हैं, जब चलाते हैं स्कूटर ड्राइव करते हैं तो हेड सिर में लगाते हैं. हेलमेट शेप्ड होता है ये, पेनिस का हेड होता है. इस पेनिस का हेड होता है, दैट इज कॉल्ड ग्लैंड्स. देन वी हैव फोरस्किन. फोरस्किन एक पतली सी स्किन होती है, लॉन्ग पीस होता है ये, जो कि ग्लैंड को कवर करता है, एंड कैन बी पुल्ड बैक. पीछे खींच सकते हैं इसको, फॉर क्लीनिंग द पेनिस. अगर अंदरला साइड ग्लैंड्स के अंदर पेनिस को भी क्लीन करना है तो इस स्किन को हटाना पड़ता है. सो इट इज द लॉन्ग पीस, वी कैन से, ऑफ स्किन which covers the gland and can be pulled back for cleaning के लिए काम आता है ये. पानी के साथ या किसी साबुन के साथ उसको क्लीन कर देते हैं. देन वी हैव स्क्रोटम. स्क्रोटम एक थैली है अंडकोश की. एक थैली, अंडकोश होते हैं, आपने शायद देखा भी होगा, लटके होते हैं दोनों साइड में. वो एक थैली होती है, थैली के अंदर होते हैं अंडकोश, बाहर थैली होती है. दैट इज नोन एज स्क्रोटम. स्क्रोटम इज थैली ओनली. थैली को ही स्क्रोटम बोलते हैं. ये बैग टाइप होता है, सैक वी कैन से, जैसे बोरी होती है, ऐसे छोटा सा बोरी, पाउच लाइक स्ट्रक्चर वी कैन से. इट इज मेड अप ऑफ लूज स्किन का होता है ये बेटा. इट होल्ड्स द टेस्टिकल्स, या अंड को टेस्टिकल्स को अपने में समाये रखता है. इट हैंग्स आउटसाइड द बॉडी. बॉडी के बाहर लटकी होती है थैली, उस थैली में अंडकोश होते हैं वी कैन से, और टेस्टिकल्स वी कैन से इनसाइड इट. देन वी हैव इंटरनल ऑर्गन्स. बिफोर वी गो टू द इंटरनल ऑर्गन्स, let us now see these portions which we have already taken. One is penis. This is called penis. This is penis. ये ब्लैडर है, जहाँ यूरिन भी इकट्ठा हो जाता है.
और ये पेनिस, नीचे इसका पेनिस है, दिस इज पेनिस, होल पोर्शन इज पेनिस। और ये है आपका ग्लैंड्स, पेनिस के एंड में ग्लैंड्स हैं, मुंड जिसे कहते हैं, ग्लैंड्स, जो मैंने कहा था हेलमेट शेप्ड होता है। और ये 4 स्किन है, एक स्किन सी होती है चारों तरफ, जो कि हम पीछे खींच सकते हैं। इट कैन बी पुल्ड बैक फॉर क्लीनिंग द, वी कैन से glands, or we can say the penis inside. स्क्रोटम जो है वो एक थैली होती है, मैंने कहा ये स्क्रोटम है, इधर बाहर की दोनों तरफ होती है, ये गोल से होते हैं। स्क्रोटम है, थैली से होती है, अंडकोश की थैली जिसे कहते हैं आप, ये आउटसाइड है देखने में। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द, वी कैन से, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सटर्नल. Now we go to the internal side. And in the internal organs, one is testicles. As I told you, इस थैली के अंदर testicles होते हैं, अंदरली साइड होते हैं testicles. There are 2 number of testicles हैं, which are placed inside the scrotum. Scrotum जो थैली बताई थी मैंने, उस थैली के अंदर होते हैं, ये scrotum के अंदर होते हैं, बाहर नहीं होते ये, अंदर, बाहर थैली होती है, अंदर होते हैं ये। देन वी हैव वैस डिफरेंस। वैस डिफरेंस, ये 2 हिस्से हैं, वैस डिफरेंस। व्हाट आर वैस डिफरेंस? दीज आर द ट्यूब्स होती हैं एक तरह से, विच कैरी द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिकल्स टू यूरेथ्रा। ये टेस्टिकल जो मैंने बताया आपको, जो थैली के अंदर होते हैं, टेस्टिकल से यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एक ऐसा पार्ट है, वी कैन से ट्यूब है, जहां से पेशाब बाहर निकलता है, मूत्र मार्ग जिसे कहते हैं, मूत्र मार्ग है ये यूरेथ्रा। क्या है? द ट्यूब विच कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। और इसमें सीमन भी आ जाता है कई बार, सीमन स्पर्म्स होते हैं उसके अंदर। सीमन ये मेल में पैदा होता है सीमन, और स्पर्म्स उसके अंदर होते हैं, जीवित होते हैं पहले। थ्रू द, वी कैन से, पेनिस, उसको यूरेथ्रा कहते हैं। तो यूरेथ्रा में से पेशाब भी निकलता है, और वी कैन से थोड़ा सा स्पर्म्स भी निकलते हैं साथ में। और स्पर्म्स में क्या होते हैं, उनको क्या कहते हैं हिंदी में? शुक्राणु कहते हैं। सो वास डिफरेंस क्या करते हैं? दीज आर द ट्यूब्स विच कैरी द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिकल्स टू यूरेथ्रा। टेस्टिकल से यूरेथ्रा की तरफ को आते हैं वो, ताकि वो बाहर निकल जाएं जब भी इनको जरूरत हो तो। देन थर्ड पार्ट इज एपिडाइमस। एपिडिडाइमस भी कह देते हैं, एपिडाइमस भी कह देते हैं इसको, एपिडाइमस। दीज आर द 2 पार्ट्स, एपिडाइमस। ये क्या करते हैं? स्पर्म्स को स्टोर करते हैं अपने में। जो स्पर्म्स ऊपर से बह करके आए हैं, फ्लो करके आए हैं, दे आर स्टोर्ड हेयर। दीज आर स्टोर्ड इन द epididymis. It is the area, we can say, where sperms are stored in the testes. Testes मैंने बताई दी आपको कि जो थैली होती है स्क्रोटम, उसके अंदर अंडकोश की थैली होती है, उसके अंदर टेस्टीज होते हैं। वो जो टेस्टीज हैं वह करते हैं स्टोर्ड इन द टेस्टीज में स्टोर हो जाते हैं स्पर्म। इट इज ए स्मॉल ऑर्गन लाइंग बिहाइंड द टेस्टीज, और टेस्टी के साथ अटैच भी होता है और पीछे होते हैं उसके लगे हुए। देन वी हैव प्रोस्टेट ग्लैंड्स। प्रोस्टेट ग्लैंड्स, दीज आर द ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स। ये आपने शायद सुना भी हो, कई बार जो 60 इयर्स के ऊपर के जो मेल होते हैं उनका ऑपरेशन भी हो जाता है, प्रोस्टेट फैल जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो प्रोस्टेट ग्लैंड्स कहा जाता है। क्या होता है? सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द ब्लैडर। ये ब्लैडर है, पेशाब करने वाला, जो इकट्ठा होता है पेशाब जहां पर, उसके नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड्स होते हैं। ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द ब्लैडर एंड प्रोड्यूस ए फ्लूइड। इसमें फ्लूइड बनता है, लिक्विड बनता है इसमें, फ्लूइड, विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ द सीमन। सीमन का हिस्सा होता है। कई बार सीमन से पहले ही निकलना शुरू हो जाता है। जो आपका लिंग है, वी कैन से, जो पेनिस है, जिसमें गीला गीला सा एक पदार्थ निकलता है बिफोर इंटरकोर्स और बिफोर कॉपुलेशन, तो उसको जो है वो एक क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में बनता है वो, एंड फ्लूइड, और पार्ट ऑफ द सीमन ही होता है वैसे पार्ट। देन वी हैव यूरेथ्रा।
यूरेथ्रा मैंने बताया था मूत्र मार्ग होता है ये, जहाँ से यूरिन आता है और फिर यहाँ से बाहर निकल जाता है। यूरिन भी निकलता है इसमें से और साथ ही सीमन भी इसके साथ ही साथ आता है, और वो लिक्विड भी जो प्रोस्टेट ग्लैंड में बनता है वो भी इसके साथ ही आता है। यूरेथ्रा क्या है मैंने बताया, द ट्यूब है यहाँ से विच कैरी यूरिन फ्रॉम ब्लैडर टू द सीमन एंड सीमन। ब्लैडर में से यूरिन भी और सीमन भी दोनों को वो, और सीमन में क्या होता है स्पर्म भी साथ ही आएंगे। थ्रू द पेनिस इट इज कॉल्ड यूरेथ्रा। यूरेथ्रा मूत्र वी कैन से मार्ग, यूरेथ्रा मूत्र मार्ग, पेशाब करने का रास्ता, निकलने का रास्ता। व्हेन सेमिनल वेसिकल्स जस्ट टचिंग वैस, जो वैस होता है ऊपर बताया था मैंने, वैस ट्यूब्स है विच कैरी द स्पर्म, जब उनके साथ जो होता है डिफन जो होते हैं और जब फूल पूरे भर जाते हैं वो, देन देयर कैन बी नॉक्चुरनल अमिशन। नॉक्चुरनल अमिशन होता है, उसको हम कहते हैं स्वप्न दोष। सोए पड़े के आदमी के निकल जाता है, सपना आएगा या नहीं भी आता, कई बार निकल जाता है बाहर हो, लेकिन है नेचुरल फिनोमिना है, इसको घबराना नहीं चाहिए इससे कि क्या निकल गया, क्या गिल्ला हो गया रात को। नो, कोई नहीं फर्क पड़ता उससे, नेचुरल है ये, हर मेल में होता है ये नेचुरल में। तो दीज आर द पार्ट्स वी कैन से ऑफ outer the inner side of the male reproductive system, postal glands and urethra. Now we go to the female reproductive system. Female reproductive system, फीमेल का भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, उसका भी आउटर एक्सटर्नल होगा और इनर होगा। तो हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज वुल्वा। वुल्वा क्या होता है, भाग भी कहते हैं हिंदी में इसको, भाग। द नेम ऑफ द प्यूबिक एरिया, जो सारा एरिया होता है, जो सेक्स एरिया होता है फीमेल का, उसको बोल देते हैं वी कैन से प्यूबिक एरिया। तो मेन प्यूबिक एरिया जो है जिसमें कि सारे आपके एक्सटर्नल जेनिटल्स होते हैं, उसको बोलते हैं वुल्वा। आई विल शो यू व्हाट इज वुल्वा। ये है वुल्वा, भाग जिसे कहते हैं, जिसमें कि सारे पार्ट्स होते हैं ये इंटरनल के, जो कि आपको यहाँ दिखाई पड़ते हैं एक्सटर्नल पार्ट्स हैं। इस एक्सटर्नल पार्ट्स के अंदर इंटरनल पार्ट्स होते हैं। तो ये भाग है या वुल्वा का पोर्शन है, वुल्वा है, जो कि एक प्यूबिक बोन के बीच में होता है। ये प्यूबिक बोन है, ये जगन हड्डी कहते हैं इसको, अस्थि भी कहते हैं, जगन अस्थि। और ये हिप बोन का एक पार्ट है, हिप बोन, ये हिप है आपका, हिप बोन का एक पार्ट है, वहां पर वुल्वा, इस पोर्शन को कहते हैं वुल्वा। और प्यूबिक बोन जो है वो वहीं पर होती है, और हिप बोन भी कहते हैं। और जगन हड्डी, इस जगन को ही, इस प्यूबिक बोन पर ही रामचंद्र जी ने रावण के मारा था। तो ये मैन और वीमेन दोनों ही है वैसे तो वुल्वा क्या है मैंने बताया आपको, नेम ऑफ द प्यूबिक एरिया कंटेनिंग एक्सटर्नल जेनिटल्स। एक्सटर्नल जेनिटल्स जो होते हैं वो सब इसके अंदर, और अंदर इंटरनल होते हैं। और प्यूबिक बोन क्या है, ए राउंडिश होती है बोन एट द टॉप ऑफ जेनिटल एरिया। ये जेनिटल एरिया है, इसके टॉप पर होती है ये, यहाँ पर। फिर दो इसमें लेबिया होते हैं लिप्स की तरह, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा बाहर की ओर होते हैं, लिप्स बाहर को जो लिप्स होते हैं एक तरह से, आउटर लिप्स कहते हैं हम इसको, लेबिया मेजोरा। दीज आर द सॉफ्ट फ्लैप्स होते हैं एक तरह से, स्किन जस्ट बिलो द मॉन्स, जो मॉन्स का है उसके नीचे होते हैं ये। मॉन्स क्या है ये भी आपको बताता हूँ मैं। मॉन्स जो होते हैं फैटी टिश्यूज होते हैं दैट कवर्स द प्यूबिक बोन। प्यूबिक बोन को जो कवर करते हैं उसको बोलते हैं मॉन्स। और मॉन्स के सॉफ्ट फ्लैप जो होते हैं जस्ट बिलो द मॉन्स के नीचे बिल्कुल, दे प्रोटेक्ट द वेजिना। वेजिना को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, वेजिना को चोट नहीं पहुंचाने देते। वेजिना जो है वो बताता हूँ आपको। लेबिया मैन्योरा छोटे लिप्स होते हैं जो अंदर की ओर होते हैं, लेबिया मैन्योरा। दीज आर द सॉफ्टर लिप्स होते हैं फाउंड इनसाइड द आउटर लिप। ये आउटर लिप्स जो हैं, लेबिया मेजोरा आउटर लिप्स हैं, ये आउटर लिप है। और ये आउटर लिप के अंदर जो है वो छोटे लिप्स होते हैं, माइनोरा वी कॉल इट।
मॉन्स क्या बताया मैंने, द फैटी टिश्यूज होते हैं दैट कवर्स द प्यूबिक बोन, प्यूबिक बोन को, ये जो प्यूबिक बोन बताई थी, बोन को कवर करके रखते हैं. देन वी हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज यूरेथ्रा. यूरेथ्रा, व्हाट इज यूरेथ्रा मीन्स मूत्र, वी कैन से मार्ग. एक छोटा सा हिस्सा दिखाई पड़ता है, दिस इज, देखा होगा आपने, ब्लैक सा है ये, दिस इज यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग होता है ये. ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, ये ओपनिंग है, ये एक छेद होता है, छिद्र होता है. एक छिद्र थोड़ा इससे बड़ा होता है, ये बड़ा है थोड़ा, ये थोड़ा छोटा छिद्र है. देखिए पास से करके दिखाता हूं आपको, ये छोटा छिद्र है और ये बड़ा छिद्र है. ये थोड़ा बड़ा होता है साइज में. इसको यूरेथ्रा तो छोटा होगा, लेकिन जो है वो ये थोड़ा बड़ा होता है. और इसमें से क्या होता है, ओपनिंग ऑफ वेजिना, इसको इट इज कॉल्ड ओपनिंग ऑफ वेजिना. वेजिना का ओपनिंग होता है. वेजिना योनि होती है, योनि द्वार, वेजिना, जिसमें कि जिसके माध्यम से बच्चा भी बाहर आता है, तो योनि द्वार बोलते हैं इसको. इससे जो है वो इंटरकोर्स भी इसी राह से होता है, योनि द्वार से ही अंदर जो पेनिस है एंटर करता है. तो ये थोड़ा बड़ा साइज में होता है, और जो मूत्र का जो छिद्र है ये थोड़ा छोटा होता है. और ये सब बाहर का हिस्सा यही है. क्या क्या है इसके अंदर, वुल्वा है, प्यूबिक बोन है, मॉन्स है, लेबिया मेजोरा है, लेबिया मैन्योरा है, और क्या है, यूरेथ्रा है. और क्या होता है लास्ट में, वेजिनल ओपनिंग. मैंने कहा था आपको, वेजिनल ओपनिंग थोड़ी बड़ी साइज की होती है, दिस इज कॉल्ड वेजिनल ओपनिंग. So these are the external parts of the say a female system. And then we go to the internal organs. Internal organs. In the internal organs, we have the main is, this is the, we can say, ovaries. These are the two ovaries, this side and this side. कहाँ एंटर करती हैं ये गर्भाशय में, यूट्रस में आती हैं इस साइड में. और फेलोपियन ट्यूब्स के, ये these are connected to fallopian tubes. These are fallopian tubes. So fallopian tubes, ये fallopian tubes हैं. और ये क्या है आपका, we can say, ये fallopian tubes जो ट्यूब की तरह है. और जो दिस पोर्शन आलमंड शेप होता है, ये आलमंड शेप मैंने बादाम के आकार का होता है ये. और ये ओवरीज, दे आर कॉल्ड ओवरीज. दे आर कनेक्टेड टू हियर यूट्रस. यूट्रस में, गर्भाशय में ये टच होती हैं, गर्भाशय जिसको कहा गया. तो फर्स्ट पार्ट वी कैन से ओवरीज. व्हाट आर ओवरीज? एज आई टोल्ड यू, ओवरीज क्या है, ये दो आलमंड शेप की होती हैं, एक तरह से जिसको कि कहते हैं बादाम के आकार की होती हैं. दीज आर द, ये दिस एंड दिस, दीज आर द almond shaped reproductive glands होती हैं, placed on each side of the uterus. यूट्रस है ये, यूट्रस के दोनों तरफ होते हैं ये. और इसमें एग्स बनते हैं, ओवाज बनते हैं, ओव्यूम कहते हैं, एक एग को ओव्यूम, ओवाज प्लूरल हो गया, या एग्स बोल देते हैं उसको. और ये फेलोपियन ट्यूब्स हैं. ये फेलोपियन ट्यूब्स क्या होती हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, इनमें से जो एग्स हैं वो एग्स यहाँ से यहाँ आते हैं. किसमें आते हैं, यूट्रस में आ जाते हैं. तो fallopian ट्यूब्स क्या होती हैं, वी कैन से दीज आर द टू ट्यूब्स जॉइंड टू द ओवरीज. ये ओवरीज के साथ जुड़ी होती हैं, और एक तरफ किसमें जुड़ी होती हैं, एट वन एंड, और दूसरी तरफ यूट्रस के साथ जुड़ी होती हैं. थ्रू दीज ट्यूब्स क्या होता है, एग्स या ओवास जो हैं, दे ट्रेवल फ्रॉम ओवरी टू द यूट्रस. ओवरी से यूट्रस की तरफ आ जाते हैं. देन वी हैव यूट्रस. दिस इज द मेन पार्ट, यूट्रस, जहाँ की बच्चा बनना है या मेंस्ट्रुएशन होना है. दिस इज द मेन पार्ट, यूट्रस. इट इज क्या होता है, थिक मस्कुलर, ये पियर शेप्ड होता है, जैसे नाशपाती का आकार है, इसकी तरह होता है, ऑर्गन होता है. इन द पेल्विस, ये मैंने बताया था पेल्विस क्या होता है, बाहर का हिस्सा. बिटवीन कहाँ होता है, रेक्टम बिहाइंड, पीछे इसके रेक्टम होता है, जहां से कि मल द्वार कहते हैं, जैसे मल आता है बाहर, हालांकि वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, पीछे होता है. और ब्लैडर इन फ्रंट, और फ्रंट में क्या होता है, ब्लैडर होता है.
द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स इन द यूट्रस। यहाँ फर्टिलाइज्ड एग, जो एग यहाँ से आएंगे और फर्टिलाइज होंगे यहाँ पर आकर के, एक ही एग बचता है उसमें से, बाकी एग जो है वो मर जाते हैं। तो फर्टिलाइज्ड एग इसमें अंदर ही बनेगा, फर्टिलाइज्ड एग इनसाइड द यूट्रस। देन वी हैव एंडोमेट्रियम। जैसे मैंने कहा आपको कि यहाँ से क्या आते हैं, एग्स आते हैं, यहाँ से भी एग्स आते हैं, एक आधा एग यहाँ रह जाता है और यहाँ से पेनिस एंटर करता है और पेनिस में से स्पर्म्स निकलते हैं इन सीमन। सीमन आता है, सीमन में स्पर्म्स आते हैं और स्पर्म्स यहाँ मिल जाते हैं इसके साथ। एंड ए वॉल यहाँ पर होती है, एक तरह से एक छोटी सी लाइनिंग बन जाती है, टाइप ऑफ लाइनिंग यूट्रस में, दैट इज शेड ड्यूरिंग वी कैन से मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में वो बह जाती है नीचे। लेकिन अगर यहाँ पर बच्चा नहीं बनना शुरू होता है, एम्ब्रॉय नहीं बनना शुरू होता, तब निकल जाती है। एम्ब्रॉय बनना शुरू हो जाए तो वो उसका भोजन बन जाता है, उसी का फूड बन जाता है। तो आफ्टर प्रेगनेंसी इट इज नॉट शेड, क्या होता है, इट नॉरिश द एम्ब्रॉय। देन वी हैव सर्विक्स, द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस। ये सर्विक्स है, लोअर पार्ट। ये यूट्रस है, ये लाइनिंग थी और ये लोअर पार्ट है, दैट इज कॉल्ड सर्विक्स। द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड सर्विक्स। देन वेजिना। वेजिना जो है वो वेजिना होल बताया था पीछे आपको मैंने, एंट्री टू वेजिना, और ये वेजिना है। वेजिना जो है वो क्या होता है, द कैनाल होती है, एक तरह से छोटी सी नली होती है, कैनाल होती है, दैट लीड्स फ्रॉम सर्विक्स टू द आउटसाइड और वेस्टिब्यूल थ्रू विच मेंस्ट्रुअल फ्लूइड पासेस, इसको वेजिना कहते हैं। और ड्यूरिंग कॉपुलेशन पेनिस एंटर्स थ्रू द वेजिना, इस वेजिना में से पेनिस एंटर कर जाता है, एंटर्स थ्रू द वेजिना, थ्रू द वेजिनल ओपनिंग। वेजिनल ओपनिंग बताया था पीछे मैंने, एक्सटर्नल पार्ट में, ये इंटरनल पार्ट है। यहाँ से ओपनिंग में से अंदर चला गया पेनिस, एंड हियर इट गोज एंड लीव्स द semen and the sperm inside the, we can say, yoni, inside the गर्भाशय, गर्भाशय इसके अंदर यूट्रस में वो यहाँ पर डाल देता है। When a baby is born, क्या होगा, आफ्टर 9 months इट आल्सो passes through vagina। कितना पतला पोर्शन है, इसमें से बेबी भी बाहर निकलता है, बेबी बाहर निकलता है, पेनिस एंटर होता है इसी पार्ट में से, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसी के कारण मैं आगे अगले टॉपिक में बताएंगे व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन। सो लेकिन आज हम पार्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि व्हाट आर द फीमेल ऑर्गन्स और व्हाट आर द मेल ऑर्गन्स, आउटर एंड इनर, वी कैन से एक्सटर्नल और इंटरनल ऑफ मेल एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑफ फीमेल। सो दिस वाज ऑल about today's topic, and tomorrow we will study about menstruation. But before that, we must know all these parts, and you should study all these parts properly. Thank you very much.